Now let us solve some examples based on the theory what we have studied. मैंने यहाँ पे कुछ 12 examples लिखे हैं. हम इन 12 examples में यह बताने की कोशिश करेंगे that what is the degree, what is the variable and what is the leading coefficient or leading term, and how to speak or how to write the proper definition, the proper way of writing the degree and the coefficient, okay, and the variable. उसका proper way क्या है, proper representation क्या है, हम उस चीज को समझते हैं. For example, सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, it is written as p of x is equals to 4x square plus 2x minus 1. 4x square plus 2x minus 1 is definitely a polynomial. ये चीज हमें क्लियर है. Now, what about the degree of this polynomial? The degree of this polynomial is highest power of variable. What about the variable of this polynomial? The variable of this polynomial is clearly x. Because हम यहाँ पे भी देख सकते हैं p of x लिखा है, मतलब polynomial of x. x का polynomial है और उसका वेरिएबल x है. What is the power? What is the highest power? That is the degree of this polynomial. Highest power of x is 2 हमें दिखाई दे रही है. So the degree of this polynomial is 2 and the variable in this polynomial is x. So we will say that p of x is a polynomial of degree 2 in variable x. p of x क्या है? p of x एक polynomial है जिसकी डिग्री 2 है. किस वेरिएबल में? x. It is a polynomial of degree 2 in variable x. Or you can say p of x is a polynomial in variable x which has degree 2. Degree equals to 2. Okay. So this is the proper way to speak, proper arrangement of words to speak the degrees, to speak about the degree and the variable of the expression of the polynomial. So इस तरह से हमें लिखना है, इस तरह से बोलना है. Okay. Second question says p of u is equals to 4u की power 7 minus 2u की power 8 plus 7u की power 3 plus 1. Okay. So clearly हम देख सकते हैं this is again a polynomial. यहाँ पे भी सभी powers कैसी हैं? whole numbers. That's why सभी exponents क्योंकि whole number है इसीलिए this is the polynomial definitely. Now इस polynomial में आपको variable कौन सा दिखाई दे रहा है? The variable in this polynomial is u because p of u लिखा हुआ है. Now what is the highest power of this variable? The highest power of this variable is 8. So we will say p of u is a polynomial of degree 8 in variable u. ओके. समझ में तो आ जाता है कि ये वेरिएबल है, ये डिग्री है, लेकिन अगर मुझे किसी को बताना है कि ये वेरिएबल है और ये डिग्री है तो उसे प्रॉपर बोलना जरूरी है. ओके. प्रॉपर टर्म्स बोलना जरूरी है. तो इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे. थर्ड वाला देखते हैं जल्दी से. थर्ड वाला क्वेश्चन से p of y is equals to 4y plus root 4y plus root 6. So in this expression this is clearly a polynomial because y के ऊपर कोई होल नंबर के अलावा कोई पावर नहीं है, कोई एक्सपोनेंट ऐसा नहीं है जो होल नंबर के अलावा कुछ हो. So this is clearly a variable, it's a polynomial of variable y, जिसमें variable कैसा है? y. What is the degree? Degree is 1. So I will write p of y is a polynomial of degree 1
in variable y. Similarly, what about fourth one? Fourth is a polynomial in t. T is the variable in this polynomial. So what is the degree? Degree is highest power of t, that is 2. So this p of t is a polynomial of degree 2 in वेरिएबल t. t वेरिएबल में लिखा गया ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है. देन नेक्स्ट फिफ्थ वन इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू -3√2. नाउ व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन? अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड. क्यों? बिकॉज -3√2 इस वेरिएबल में इस एक्सप्रेशन में किसी प्रकार का कोई वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है. लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू -3√2, देन दिस बिकम अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. ध्यान से सुनिए, अगर मैं सिर्फ इस टर्म की बात करूं -3√2, देन हम नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा वेरिएबल है, बिकॉज वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. -3√2 के साथ में ऐसा t की पावर 0 भी लिख सकता हूं, ऐसा x की पावर 0 लिख सकता हूं, ऐसा y की पावर भी 0 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं. देन व्हाट विल बी द वेरिएबल? तो इसीलिए अगर सिर्फ -3√2 लिखा है तब हम वेरिएबल नहीं बता सकते. लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया p of x इज इक्वल्स टू -3√2, then definitely this polynomial is in variable x. So क्योंकि यहाँ पे p of x लिखा हुआ है, that's why we will say that it is p of x is a polynomial ऑफ डिग्री. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल -3√2 इज 0. दिस बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स x की पावर 0. सो p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इन वेरिएबल x. x वेरिएबल में लिखा गया यह एक्सप्रेशन. नाउ खास बात, दिस एक्सप्रेशन that p of x is equals to -3√2, it do not contain any term, any power of x other than 0. 0 के अलावा इस एक्सप्रेशन में कोई और पावर अवेलेबल नहीं है x की. तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें x का पावर 0 रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. Hence this polynomial is also a constant polynomial. तो इस पॉलिनोमियल को हम और क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट दिस पॉलिनोमियल p of y is equals to 0? So p of y is equals to 0 लिखा हुआ है. So definitely this is a polynomial in variable y. लेकिन यहाँ पे y की पावर कैसी है? डोंट नो. हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे y की पावर 0 है. ओके, डोंट से दिस. y की पावर हम 0 नहीं कह सकते, हमने अभी पढ़ा था. सो वी विल से इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड. इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड. हमने इस चीज को सीखा है कि नॉट डिफाइंड कैसे? बिकॉज y की कुछ भी पावर हो सकती है. y की कुछ भी पावर ले लीजिए, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0. So this polynomial, for this polynomial degree is not defined. Okay, now it is also known as a zero polynomial. Now this p of t is equals to 9. What is the degree of this polynomial? क्या हम इस polynomial की डिग्री को बता सकते हैं? Yes, this is a polynomial in variable t and the degree should be 9 into
this t की power 0. So the degree of this polynomial is, degree is definitely 0 and the variable is t and this is a constant polynomial. ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन, p of x is equals to 4x square plus 2x minus 1. In this expression also, what is the degree? Degree of this polynomial will be the highest power of variable. So what is the variable? Variable is x and degree is this 2. So degree कितनी हो जाएगी इसकी? 2 और वेरिएबल कौन सा है? x. So कैसे लिखेंगे आप? You will say p of x is a polynomial of degree 2 in variable x. Okay, बिल्कुल इस तरह से p of x is a polynomial of degree 2 in variable x. Next one, ninth one, p of z is equals to 9z की power 9 plus 8z cube plus 1 upon root of z minus 1. So what is the degree of this polynomial? Can I say that degree is equals to 9? Is it a polynomial in variable z? क्या ये z में एक polynomial है? क्या इसकी डिग्री 9 दिखाई दे रही है? No. This expression is not a polynomial because यहाँ पे क्या टर्म लिखा है? 1 upon root of z minus 1. So 1 upon root of z minus 1 मतलब z की पावर होल नंबर के अलावा कुछ, पता नहीं क्या, बस इतना पता है कि होल नंबर के अलावा कुछ होगी. सो डेफिनेटली एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर कैसा है, उसका एक्सपोनेंट कैसा है? होल नंबर के अलावा कुछ, अदर देन होल नंबर, समथिंग अदर देन होल नंबर. हेंस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एंड व्हाट अबाउट द डिग्री? सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. इट इज ओनली एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. यह सिर्फ एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यह कोई पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए डिग्री हम डिफाइन नहीं करेंगे. सेकेंड वन, p of t is equals to 1 upon root t square. क्या इसकी डिग्री हम 2 कह सकते हैं? नो, इसकी डिग्री हम 2 नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पे 1 upon रूट लगा हुआ है, 1 upon root t square. ओके, सो यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर एक्चुअल में जो होल नंबर है, होल नंबर के अलावा कुछ होने वाली है, पता नहीं क्या होगी लेकिन कुछ अलग ही दिखाई दे रही है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. This is also not a polynomial. Then next, p of x is equals to 4x plus 9 की पावर 3/2. क्या इस एक्सप्रेशन की डिग्री हम 1 कह सकते हैं? बिकॉज वेरिएबल क्या है? x. x के ऊपर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1. लेकिन 4x plus 9 पूरा ब्रैकेट में है और उसके ऊपर 3/2 लिखा हुआ है. सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये क्या है? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यह एक पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट, p of z is equals to 1 plus 1 by root 2 z square minus 1 plus root 3 की पावर z5. Now z to the power 5. In this expression, what is the variable? Variable is z. Definitely z variable है इसमें. First thing to note is that is it a polynomial? क्या यह एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? चलिए चेक करते हैं. z is the variable, इसकी पावर यहाँ कितनी दिखाई दे रही है? 2. z is the variable, कितनी पावर है? 5. सो क्या यहाँ पे z की कोई ऐसी पावर है जो होल नंबर नहीं है? नो. यहाँ पे दोनों पावर्स z की, दोनों टर्म्स में जो पावर है, द एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर दिखाई दे रहा है. हेंस दिस इज डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल. यह एक पॉलिनोमियल है, ये तो क्लियर हो चुका है. देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? z की पावर 2 दिख रही है, z की पावर 5 दिख रही है, सो डेफिनेटली डिग्री इज 5. So we will say p of z is a polynomial of degree 5 in variable z.
p ऑफ x क्या है? इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन वेरिएबल z. ओके, इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे. सो p ऑफ z इज अ पॉलिनोमियल. आगे लिख सकते हैं इट्स डिग्री ऑफ डिग्री 5 एंड इन वेरिएबल z. सो यहां पे हमने ये चीज कंक्लूजन निकाला दैट दिस टर्म इज अ कांस्टेंट. ये इसमें 1/√2 आए, 1/√3 आए या और कुछ आए, इट डजेंट मैटर. अगर यहाँ पे ऐसा होता 1 + 1/√2 का स्क्वायर भी होता, देन ऑल्सो इट डजेंट मैटर, बिकॉज हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ और सिर्फ z की, दैट इज वेरिएबल की पावर से मतलब है. वेरिएबल की पावर कितनी हो रही है, हमें सिर्फ इससे काम है. ओके, सो दीज आर द 12 क्वेश्चंस. यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड प्लीज रिमेंबर द वे टू रिप्रेजेंट, द वे टू राइट द डिग्री एंड द वेरिएबल. ओके, इस तरह से आपको लिखना है. सो इसे नोट कर लीजिए, देन कंटिन्यू करते हैं. Okay, so now we have understood about the difference between algebraic expression and polynomial, and we have understood the polynomial. हमने polynomial के different terminologies को, different representation को, different forms को अच्छे से समझा. हमने ये समझा कि डिग्री क्या होती है, डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है, डिग्री के अलावा कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है. सो हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज को तो सीख लिया, लेकिन पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं ये अभी तक नहीं सीखा. हमने सिर्फ एक जनरल डिस्कशन किया है, एक जनरल टर्म्स के बारे में सीखा है. सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स कितने तरह से क्लासिफाई होते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. लेकिन क्लासिफिकेशन करने के भी दो तरीके हैं. पहला, ऑन द बेसिस ऑफ number of terms. On the basis of number of terms. Number of terms कैसे? पॉलिनोमियल्स में टर्म्स कितनी हो सकती हैं? Either 1, 2, 3, 4, 5, infinite number of terms. टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं किसी पॉलिनोमियल में. सो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि किस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे. सबसे पहला आता है द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स इज मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल which contain only one term. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम कहेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन, और मोनोमियल और सिंपली मोनोमियल. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल p of x is equals to 2x. This is what this expression contains only one term, and hence this is a monomial. If I write p of x is equals to 3x into x square, is this a monomial? क्या यहाँ पे दो टर्म दिखाई दे रही हैं कि क्या यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रही है? ध्यान से देखिए, अभी हमने कहा था टर्म क्या होती है. टर्म मीन्स डिफरेंट एक्सप्रेशंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए हों. यहाँ पे 3x और x स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, हेंस 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली 3x क्यूब. इसका मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. क्या इसके अलावा कोई टर्म दिखाई दे रही है? नो. हेंस दिस इज अ मोनोमियल.
मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। सिमिलरली p ऑफ x और p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x की पावर 5, इज इट अ मोनोमियल? यस, सिंगल टर्म। p ऑफ t इज इक्वल्स टू 0, क्या p ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 इज अ मोनोमियल? यस, p ऑफ t भी अपने आप में एक मोनोमियल है, बिकॉज टर्म एक ही है, सिंगल टर्म है इसीलिए। और इफ आई से p ऑफ लेट्स से u is equals to 18, p of u is equals to 18, p of u is equals to 18 is a polynomial। क्या ये एक मोनोमियल है? यस, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है 18, उसके अलावा कुछ नहीं है, हेंस दिस इज अ मोनोमियल। सेकेंड कैटेगरी आती है बाइनोमियल, binomial terms, binomial expression. Binomial is the polynomial which contain only two terms। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स हो, उसे हम कहेंगे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ t इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2, p ऑफ t इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2। क्या यहाँ पे दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं? यस, 3t इज वन टर्म एंड 2 इज सेकेंड टर्म, सो 3t प्लस 2 इज अ बाइनोमियल बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स है। सिमिलरली p ऑफ u इज इक्वल्स टू 9u क्यूब प्लस 8, इज इट अ बाइनोमियल? क्या यह एक्सप्रेशन भी एक बाइनोमियल है? 9u क्यूब इज अ सिंगल टर्म, देन 8 इज अगेन अ सिंगल टर्म, और ये दोनों टर्म्स प्लस साइन से कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये दो कैसी हैं? ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, और दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सिमिलरली p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1, क्या ये टर्म भी, क्या ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है? यस, एक्स क्यूब माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल। इफ आई से p ऑफ t इज इक्वल्स टू 0, इज दिस एक्सप्रेशन अ बाइनोमियल? क्या ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? नो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है, दैट इज 0, तो दिस इज अ मोनोमियल एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, सो इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। दिस इज बाइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब तीन टर्म्स, सॉरी दो टर्म्स, बिकॉज बाय स्टैंड्स फॉर 2, दिस बाय स्टैंड्स फॉर 2, ओके, दिस मोनो स्टैंड्स फॉर 1, मोनो का मतलब 1 होता है, बाय का मतलब 2 होता है। थर्ड कैटेगरी इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्राई मतलब 3, ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे ट्राइंगल आप पढ़ते हैं, ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल वाला एक फिगर जिसको हम कहेंगे ट्राइंगल। उसी तरह से ट्राइनोमियल मतलब 3 एक्सप्रेशन वाला एक टर्म, 3 टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन, ओके, 3 टर्म्स वाले एक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे ट्राइनोमियल। सो ट्राइनोमियल का डेफिनेशन, इट इज द पॉलिनोमियल which contain थ्री टर्म्स। यह एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं इसीलिए हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। सेकेंड, p ऑफ t इज इक्वल्स टू 9t टू द पावर 5 माइनस 9t टू द पावर 7 प्लस 1, दिस इज अ ट्राइनोमियल बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म्स है, ओके। इसी तरह से
सो बाइनोमियल हुआ, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने देखा 3 कैटेगरीज होती हैं, और इसके अलावा अगर 4 टर्म्स होंगी, 5 टर्म्स होंगी, सो दैट विल बी सिंपली नोन एज पॉलिनोमियल। ओके, 3 से ज्यादा टर्म्स वाले को हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। वैसे 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स के लिए भी टर्म होता है, जैसे ये ट्राइनोमियल है, ऐसे 4 टर्म्स के लिए भी होता है, बट वी डोंट नीड टू स्टडी दैट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल इन 3 चीजों को जानते हैं। इसके अलावा जो भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होगी उसे हम सिंपली पॉलिनोमियल कह देंगे। ओके, नाउ so this classification is totally based on number of terms. Second classification, this is one, this is second classification. Second classification, we will going to classify the polynomials on the basis of degree, on the basis of degree. डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स? लीनियर पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स has degree equals to 1। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, p of x is equals to 3x। p of x is equals to 3x, यहां पे वेरिएबल क्या है? x। x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। Hence, p of x is a linear polynomial. If I write p of x is equals to 3x plus 9. So, in this expression, what is the highest power of the polynomial? Highest power of variable, that is 1. So, degree कितनी है इस वेरिएबल की, इस पॉलिनोमियल की? 1. So degree 1, hence this is also a linear polynomial. इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं उसकी डिग्री पे, हम सिर्फ डिग्री को देख रहे हैं। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने उसमें आ रहे हैं, सिंगल टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस p of x इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस 3x इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। इफ आई से p of x इज इक्वल्स टू 7, सो p of x इज इक्वल्स टू 7, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल वह है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। यहां पे इस 7 की डिग्री कितनी दिखाई देती है? 7 मीन्स इट इज 7x टू द पावर 0। इसके साथ x है और x की पावर कितनी है? 0। सो इस एक्सप्रेशन की डिग्री इज 0। तो क्या यह एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ? नो। हेंस दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी। Second category is, first is linear polynomial, second is quadratic polynomial. Second कैसा है? Quadratic polynomial. So what is quadratic polynomial? Which has degree equals to 2. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, p of x is equals to 3x square minus 2x plus 4. इन दिस पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं द वेरिएबल इज x,
the highest power of x is 2. So this is what this polynomial has degree 2. अगर इस polynomial की डिग्री 2 है, it means ये कैसा polynomial है? Quadratic polynomial. So I will say this p of x is a quadratic polynomial. If I write it like this, p of t square, p of t is equals to t square. p of t is equals to t square. क्या यह एक्सप्रेशन भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? लेट अस चेक. इसका वेरिएबल कैसा है? t. इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. सो इसकी डिग्री कितनी है? 2. हेंस इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इट हैज डिग्री 2. अभी मैंने कहा टर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है. ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, बिकॉज हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं उसकी डिग्री पे. ओके, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इफ आई राइट p of u is equals to 4u minus 8u square plus or just 4u minus 8u square. Is it a quadratic polynomial? Yes. इसमें क्या है? वेरिएबल कौन सा है? u. u के अलावा u में पावर क्या है? u की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2. So इसकी डिग्री क्या है? 2. That's why this is a quadratic polynomial. So I guess quadratic polynomial is clear to all. Then next, C. C category is cubic polynomial. Now what is cubic polynomial? Cube मतलब 3. So the polynomial which has degree 3 is a cubic polynomial. ऐसे polynomial जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम cubic polynomial कहते हैं. For example, p of y is equals to 3y cube minus 7. This example, यहाँ पे वेरिएबल y है, वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर 3 है, दैट इज डिग्री 3 है. सो डिग्री 3 है, इट मीन्स ये कैसा पॉलिनोमियल है? p of y is a cubic polynomial. Similarly, if I write p of y is equals to 9y square minus 3y cube plus 8y minus 9. Is it a cubic polynomial? देखते हैं. यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? y. वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है? 3. 3 मतलब डिग्री इज 3. सो डिग्री 3 मतलब दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, इफ आई से px is equals to x cube, is it again a cubic polynomial? Yes, because highest power of x is 3, degree 3, hence it's a cubic polynomial. Again यहाँ पे भी तीनों पॉलिनोमियल्स में आप देख सकते हैं, तीनों पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट है, लेकिन फिर भी तीनों पॉलिनोमियल्स क्यूबिक है. हेंस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वी नीड टू फोकस ऑन डिग्री ओनली. ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पॉलिनोमियल कौन सा है, मोनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर बाइनोमियल है. सो प्लीज बी क्लियर, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होता है और डिग्री के बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. इसे नोट कर लीजिए. देन वी विल स्टडी डिफरेंट क्वेश्चंस. वी विल हैव सम एग्जांपल्स जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या लीनियर, क्यूबिक या फिर क्वाड्रेटिक है. ओके, वी विल गोइंग टू डू सम interesting examples. So first note this.